الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری البقرہ اس کے آیت نمبر 44 ہم شروع کر چکے ہیں۔ تأمرون الناس، تأمرون یہ جو امر سے بنا ہے، امر حکم، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، بھلی چیزوں کا حکم دیتے ہو۔ ابھی امر جو ہے کسی چھوٹے کو، اپنے سے چھوٹے سے کسی چیز کے طلب کرنے کو کہتے ہیں حکم دینا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اپنے سے چھوٹے سے کوئی چیز طلب کرنا یہ ہے حکم دینا۔ اپنے برابر والے سے کسی چیز کا طلب کرنا یہ ہے التماس، ریکویسٹ۔ یعنی آدمی چھوٹے کو تو آرڈر کر سکتا ہے، بڑے سے ایک الگ طریقے سے کوئی چیز طلب کر سکتا ہے جو اپنے برابر والا ہے اس سے۔ اور بڑا جو ہے اپنے سے بڑے سے کسی چیز کا طلب کرنا یہ ہے استدعاء، دعا۔ چھوٹے سے طلب کرنا یہ آرڈر ہے، بیٹا پانی لا کر دو، آرڈر نہیں۔ اپنے برابر والے سے بھائی پانی دے دو، یہ ہو نہیں۔ اور جو اپنے سے بڑا ہے اب اس سے کچھ مانگے گا آدمی تو وہ تو دعا کرے گا، التماس کرے گا، وہ استدعاء کرے گا۔ تو اللہ سے کسی چیز کا طلب کرنا یہ دعا ہے۔ تو یہاں پر یہودیوں کے عالم جو تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم بڑے ہو، لوگ تمہیں مانتے ہیں، جانتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، تم کیا کرتے ہو؟ اپنے سے جو چھوٹے ہیں، الناس، جو دوسرے لوگ جو ہیں جو تم سے چھوٹے جاہل ہیں، ان کو حکم دیتے ہو کس چیز کا؟ تم ان کو حکم دے رہے ہو کس کا؟ بھلائی کا، بر۔ اس کا معنی وسعت کے معنی میں آتا ہے۔ ہر نیک کام کو بر کہا جاتا ہے، بھلا کام۔ تمام نیک کام جو ہے سب بھلے کام ہیں۔ ہر نیک کاموں کا تم حکم دیتے ہو، کس کو دیتے ہو؟ جاہلوں کو، اپنے سے چھوٹوں کو، کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، ان پر ایمان لے آؤ۔ اور جو ایمان لا چکے ان سے کہتے ہیں ہاں ہاں وہ صحیح ہے، جو غریب، جیسے میں نے پیچھے شان نزول میں کہا، ہاں وہ صحیح ہے، ان کے دین پر قائم رہو۔ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہو، اور پھر کیا کرتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ بھول جانا، نسیان۔ یہ نسیان کا معنی ہوتا ہے علم ہونے کے بعد بھول جانا، یہ نسیان ہے۔ پہلے پتا تھا لیکن بھول گیا، چھوڑ دیا۔ یہاں اصل میں جو ہے یہ بھولنے کے، چھوڑنے کے معنی میں ہے یہ، کہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو۔ اپنے آپ کو، کوئی انسان اپنے آپ کو بھولتا نہیں ہے۔ آپ میں، ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں، پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں اسی معنی میں ہے۔ نسیان جو ہے پہلے سے علم تھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، اسے چھوڑ دیا، اسے کہتے ہیں نسیان۔ اور پہلے سے علم نہیں تھا اور پھر کچھ بھول گیا، وہ ہوا سہو۔ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، اچھی بات کی طرف بلاتے ہو، تمہارا اپنا عمل کیا ہے؟ تم خود اس پر عمل نہیں کرتے، سب کچھ جانتے ہو کہ محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ جانتے ہو کہ اسلام سچا دین ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہی حق ہے، اس پر لوگوں کو تو بولتے ہو کہ قائم رہو، لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، چھوڑ دیتے ہو اپنے آپ کو، خود اس بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اپنے آپ کو چھوڑ رہے ہو، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلا رہے ہو۔
अतअमुरुन अन्नास बिलबिर तंसौना अनफुसकुम। अच्छा, ये आ जो है ना अलिफ, अतअमुरुन अन्नास, ये भी बड़े माना रखता है। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो? इस तरीके से भी आता है, या झड़कने के लिए भी? अरे कुछ तो शर्म करो, लोगों को नेकी की तरफ बुला रहे हो और खुद अमल नहीं कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो। झिड़कने के लिए भी, ताज्जुब के, अरे बड़ा हैरत की बात है कि तुम सब जानते हो, लोगों को बुला रहे हो उसी चीज़ की तरफ, खुद अमल नहीं कर रहे हो। एक ही हर्फ जो है अलीफ, उसकी तरह माना रखता है कि तुम लोगों को बुला रहे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही हैं, उन पर दीन ईमान ले आओ, कायम रहो, खुद अपना क्या है, भूल चुके अपने आप को, खुद उस नेक काम पर अमल नहीं करते हो। और अमल नहीं करना, ये चलो तुम्हें पता ना हो, जानते नहीं हो तो अमल नहीं किया, तुम्हारा हाल तो ये है, वान तुम ततुल किताब, तुम तो किताब पढ़ते हो ना, तुम्हारी तौरात तो तुम बार बार पढ़ते हो, उसके तो तुम हवाले देते हो, उसी तौरात में लिखा हुआ है, सारी निशानियां मौजूद है। अगर सच्चे हो तो देख लो, पढ़ के देखो, यही मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हीं का जिक्र तुम्हारी तौरात में, तुम्हारी इंजील में, सब जगह मौजूद है। और तुम क्या कर रहे हो? किताब पढ़ने के बावजूद हैरत है इस बात पर, सब जानने के बावजूद हैरत है इस बात पर कि तुम लोगों को तो नेकी की तरफ बुला रहे हो और खुद अपने आप को भूल कर बैठे, खुद अपने आप को भूल कर बैठे। अपना अमल नहीं है, लोगों को अमल की दावत दे, और वो भी किस चीज पर? ईमान की तरफ। लोगों को कह रहे हो हाँ हाँ लगे रहो, ईमान ले आओ उन पर, और खुद जानते बुझते अपने आप को छोड़े हो गए, अपने आप को छोड़ दिया, उस चीज पर अमल नहीं कर। और इस सारी तुम अपनी ही किताब में सब चीजें पढ़ रहे हो, तौरात में सब कुछ पढ़ रहे हो, उसके बावजूद अपने आप को छोड़े हुए हो। इस चीज पर ताज्जुब है, अफसोस है, हैरत है कि तुम खुद अमल नहीं कर रहे। कौन तुम तो तुम्हें कितना इनको तौबीख की जाए, कितना इनको, यानी तुम सब कुछ जानते बूझते फिर अमल नहीं करना, सब कुछ तुम्हारे सामने है फिर अमल नहीं करना, ये कौन सी बात है? अन तुम ततलून अल किताब, तिलावत होता है, तिलावत से बना, तिलावत जो है इसका माना, तिलावत को तिलावत कहते हैं, पढ़ने वाले को ताली कहते हैं। इसका मतलब होता है पीछे छोड़ना, तिलावत का मतलब होता है पीछे छोड़ना, आगे बढ़ते हैं। कारी जो होता है ना, तिलावत करने वाला, कुरान शरीफ पढ़ने वाला, वो आगे बढ़ता रहता है, पढ़ते 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 अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया, पढ़ते हुए आगे एक पारा ख़त्म, दो पारा ख़त्म, यानी आगे बढ़ते जाता है। और दूसरी मतलब पीछे के पारे जो हैं, अल्फाज जो हैं, एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ, एक एक जुमला पढ़ते हुए आगे बढ़ता रहता है, पीछे छोड़ता चला जाता है। तो ये है तिलावत का लफ्ज़ी माना, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए तिलावत को तिलावत कहते हैं, पढ़ने वाले को ताली कहते हैं। तो यहाँ उसी का यही तकल्लुफ़ जो है वो तिलावत से बना है कि तुम पढ़ते हो, बार बार सब जानते हो, तुम्हारी किताब में सब कुछ लिखा है, मालूम है तुम्हें, उसके बावजूद अमल नहीं करते हो, अपने आप को भूले हुए हो, दूसरों को दावत दे रहे हो। वहाँ तुम ततलून अल किताब। अब यहाँ पर फिर आखिर में इनको एक और, इस आयत के आखिर का जो जुमला है उस पर इन्हें एक ज़र्ब और लगाई गई, अफला तअक़िलून, अकल नहीं है क्या? तुम अकल नहीं रखते हो ना? बोलते हैं ना हम भी, आज भी तो इस्तेमाल होता है, दिमाग नहीं है क्या? दिमाग चला है क्या? अकल काम नहीं कर रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, आज भी बोलते हैं। अल्लाह ताला ने खुद वही जो बंदों का तरीका, उन्हीं के अल्फाज में उस वक्त से जारी था, ये उन्हीं के तरीके से बताया। दिमाग नहीं है, अकल नहीं है तुम्हारे पास, अकल है ना, तुम तवक्कुल है, अकल तुम्हारे पास, तुम अकल रखते हो, उसके बावजूद इस नेक काम की तरफ लोगों को बुला रहे हो और खुद को छोड़े हुए हो। ये तो बड़ी अजीब बात है। इसीलिए पहले ताज्जुब का इस्तेमाल किया गया, अतअमुरुन अन्नास। वो अकल को देखिए, अरबी ज़बान जो है ये कोई इंसानों वाली ज़बान, हाँ सारी ज़बानें अल्लाह ने बनाई, पर इस ज़बान को अल्लाह ने अपने लिए पसंद फरमाया, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पसंद फरमाया।
तो ऐसी कोई जबान नहीं है ये। कितना प्यारा है। अक्ल को अक्ल कहते क्यों हैं? अक्ल का माना होता है बाज रखना, रुकना, रोकना। रोकना। जानवरों को अरबी में, ऊंट को, बकरियों को जिस रस्सी से बांधते हैं उसे कहते हैं यकाल, यकालुल बईर। क्यों? क्योंकि उस रस्सी के, जब रस्सी से बांध दिया जाता है जानवर को, तो वो उसे रोक देती है, कहीं जाने नहीं देती, उसी जगह पर वो बंधा रहता है। तो अक्ल को भी अक्ल इसलिए कहते हैं कि वो इंसान उस चीज का, उस कुव्वत का इस्तेमाल करके बुरी बातों से अपने आप को रोकता है। सामने खड्डा है और अगर अक्ल वाला है तो यार खड्डे में उस तरफ जाऊंगा तो गिर जाऊंगा। अक्ल का इस्तेमाल किया, अक्ल ने उसे रोक दिया, बुरी तरफ, नुकसान से रोका, भलाई की तरफ लेके चली गई अक्ल, फायदे की तरफ। ये है अक्ल। इसमें बाज रखा, रोका। तो इसी रोकने की ताकत को कहते हैं अक्ल। तो यहां भी कि तुम्हारी अक्ल तुम्हें दावत दे रही है, ललकार रही है, झिझोड़ रही है कि तुमने अगर इस्लाम को कबूल नहीं किया तो तुम जहन्नम की तरफ चले जाओगे, जहन्नम का ईंधन बनोगे, कुफ्र पर मरोगे। तो अपनी अक्ल से काम लो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ, इस्लाम की पैरवी करो, इस्लाम को कबूल करो। तुम्हारी अक्ल तुम्हें दावत दे रही है, तुम्हारी अक्ल ये चीख चीख कर कह रही है। तुम्हें तो अक्ल, अफला ताकिलून, अक्ल वाले हो ना, आकिल हो ना। फिर और कर क्या रहे हो? जानते भी हो कि यही सच्चा दिन है, यही सच्चे रसूल हैं, यही सच्चा मजहब है। कर ये रहे हो कि जिन्होंने, जो गरीबों ने कबूल कर लिया, हाँ हाँ तुम उस पर कायम रहो, बिल्कुल यही है, सही है, और खुद अपने आप को भूले हुए हो और दूसरों को भी मना करते, जो दूसरे जो पैसे वाले उनको मना कर रहे हो। ये तुम कैसी अजीब सी बात है। किताब भी पढ़ रहे हो, तौरात में लिखा भी है, सब कुछ है, सब जानते हो, अक्ल भी है, उसके बावजूद इन चीज़ों पर अमल नहीं कर रहे और ईमान नहीं ला रहे। बड़ा अफसोस है। तो ये है इस आयत पाक का खुलासा, इसकी तफसीर। कुछ बातें और हैं, इसको इंशाअल्लाह अगले ऑडियो में मुकम्मल करेंगे। हो सके तो लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ऊपर लाइए ताकि और लोगों में पहुँचे और हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए सवाब जारिया का एक और रास्ता बन सके। परवरदिगार हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और हमें अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।